Hello class 7th, welcome once again on our teaching program. Students, in today's video we will discuss the remaining portion of Aurangzeb and relation to other rulers. In that sequence we had discussed about the trade interest with Mughals to the other countries, and now we will discuss the possession of Kandahar. Kandahar is a place in Afghanistan. So let's start. Another important aim of Mughal of the foreign policy was to have a hold and position over Kandahar. It was due to two reasons. Firstly, without having possession of Kandahar, they could not keep Kabul under their possession. Secondly, Kandahar was situated on that passage which linked India with Iran and other countries of Central Asia. And in this way, Kandahar continuously exchanged till after different hands 1522, 1588, 95, 1638, 1649 AD. Babur took possession of Kandahar in 1522. During Akbar's early days, Iran captured it, but Akbar captured it in 1595 AD. तो इसको आप ये समझिए कि जो कांधार का इलाका था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जितने भी मुगल शासक हुए, जितने भी राजा हो, चाहे वो अकबर हो, औरंगजेब हो या उसके पहले के जो तुर्क थे, वो कांधार पे कब्जा करना चाहते थे। क्यों कब्जा करना चाहते थे कि कांधार ही एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा पैसेज था कि जहाँ से होकर के ईरान जाया जा सकता था और वहाँ से काबुल यानी कि उस रास्ते से होकर के अफगानिस्तान अरबियन कंट्रीज में जो है जो हिंदुस्तान के व्यापारी थे जो व्यापार करते थे वो आसानी से आ जा सकते थे। तो अगर कांधार पे जिसका कब्जा होता था यानी उसको जो टैक्सेस मिलते थे आने जाने वालों से प्लस उसका बिजनेस बहुत प्रॉपरली रन करता था। तो इसीलिए 1522 से लेकर के 1638 तक जो है जितने भी शहंशाह हुए, जितने भी बादशाह हुए, उन्होंने कांधार को कैप्चर करने की बात सोची। इसमें अकबर थे, बाबर से लेकर के अकबर तक जो शामिल रहे हैं, बाबर से लेकर के अकबर तक, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम बाबर टू अकबर द मुगल्स वेयर टोटली एंगेज्ड टू कैप्चर कांधार। A fifth had to maintain the balance of power in Asia. एशिया में अपने पावर को मेंटेन करने के लिए भी मुगल काफी परेशान रहे। कैसा? इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी आफ्टर द फॉल ऑफ द टिमुराइड एम्पायर, टिमुराइड में इससे होता है जो तैमूर का जो शासन था उसके खात्मे के बाद, देयर एमर्ज 3 डायनेस्टीज ऑफ उज़्बेक्स, सफाविद्स एंड द ओटोमन्स ऑफ तुर्की। 3 डायनेस्टियाँ थी, उज़्बेक, सफाविद और ओटोमन। The Uzbeks from the very beginning had enmity with Mughals because they had forced the Mughals to vacate Samarkand and adjoining areas. The Uzbeks were quite friendly with Turks because both of them were staunch Sunnis, which Safavid Empire in Iran followed Shiism. Both Uzbeks and Turks wanted to defeat Iran, who followed Shiism. जो तुर्क थे और उज़्बेक्स थे वो जो सुन्नी थे, तो इसलिए वो दोनों में एक मित्रता थी और वो सफाविद को जो है हराना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है शिया थे। इफ दे हैड सक्सेडेड इन दिस इट वुड हैव अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पावर इन सेंट्रल एशिया। अगर ऐसा हो जाता तो जो सेंट्रल एशिया में पावर जो है डिसबैलेंस हो जाता। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है हमेशा कंटिन्यू किया। वो तुर्क और उज़्बेक हमेशा जो है शियाओं को जो है नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे और आपस में जो है लड़ा करते थे। हालांकि तुर्क और उज़्बेक साथ में लड़ते थे और शिया उनका अलग से मुकाबला करते थे। So under compulsion, the Mughals had to support Iran, though they had difference with her over question of Kandahar. और इस नाते मुगल्स को ईरान को सपोर्ट करना पड़ा, हालांकि कांधार को लेकर के उनमें मतभेद था, वो एग्री नहीं थे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों मुगल कोड। मुगल कोड सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुगल कोड क्या था, कैसे था वो देखेंगे। द मुगल्स fully knew the value of a dignified court, so they spent a lot of money on its construction and maintenance. They would hold the court while sitting on the high platform, so that anybody who come to see them had opportunity to bow before them. All the central ministers were allotted permanent seats. The distinguished guests were not only given seats after being received honorably, but also were judicially attended to and rewarded.
Amongst all this pomp and show, the Mughal rulers did not forget to pay attention to their public. They would often hold open courts, listen to the complaints of their subjects and try to pacify them. मुगल जानते थे कि अगर अपनी बादशाहत को दिखाना है तो उनका जो कोर्ट होगा, जो उनका दरबार होगा, वो काफ़ी आलिशान होगा। और ये सही बात भी है कि उस ज़माने में काफ़ी शान शौकत से मुगल रहा करते थे, और वो जब दरबार लगता था तो एकदम ऊँचे सिंहासन में बैठते थे ताकि कोई भी उनके सामने जाए तो अदब से उनके सामने सर झुकाए। उसके बाद जो उनके मंत्री होते थे वो आगे बैठते थे, और जो उनके गेस्ट वगैरह होते थे वो भी बैठा करते थे। और जितने भी जो उनके रैंक नोबल्स होते थे, जो उनके अधिकारी होते थे, या जो ये कई जो सेनापति या सेनाध्यक्ष होते थे, वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग बैठा करते थे। और उस ज़माने में दो चीज़ें काफ़ी प्रचलित थी, एक थी दीवाने खास और एक था दीवाने आम। तो कभी कभी क्या होता था कि वो दीवाने आम होता था, यानी कि जो राजा था, शहंशाह था, वो पब्लिक से रूबरू होता था, यानी कि जो बादशाह था पब्लिक उससे मिल सकती थी एक एक करके। तो इससे ये होता था कि पब्लिक में एक मैसेज जाता था कि राजा उनकी बात को सुनता है, और राजा को भी लगता था कि पब्लिक उसको एडमायर करती है। तो कुछ इस तरीके से जो कोर्ट हुआ करते थे, उनके दरबार हुआ करते, वो काफ़ी ब्यूटीफुल हुआ करते थे, काफ़ी ग्लोरियस हुआ करते थे, और काफ़ी जो है चार्मिंग हुआ करते थे। इसके बाद बच्चों से हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हाउ द अकबरनामा वॉज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। अकबरनामा किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया हिस्ट्री को लिखने में या हिस्ट्री को समझने में। दिस इंपॉर्टेंट वर्क्स वर रिटन बाय अबुल फजल, परहैप्स द मोस्ट फेमस ऑफ 9 जेम्स ऑफ अकबर कोड। ये अकबर के ज़माने के जो नॉर्मल थे उसमें से एक अबुल फजल के दौर लिखा गया था। They give important information about Akbar courts, his conquest, region pursuit, administrative, social, economic। कहने का मतलब यह है कि जो अकबरनामा था, जो अबुल फजल ने लिखा था, वो अकबर के हर उस चीज़ को डिफाइन करता था, उसके रहने के, उसके बोलने के, उसके जो है उठने बैठने के तरीके के से किस तरीके से दरबार में पेश आता था, उसने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी, उसकी हॉबीज़ क्या थी, और वो अपने लोगों से किस तरह से पेश आता था। मतलब उसके पर डे के जीवन की दिनचर्या, उसकी पर डे डेली रूटीन के बारे में अबुल फजल ने इसमें बहुत ही जो है कार्य से इसमें लिखा है, यानी बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है। बताया गया है कि अब्दुल्लाह a courtier during Akbar's reign used to say, I am not so much afraid of the sword of Akbar as of the pen of Abul Fazl. There can be a greater tribute to Abul Fazl literary skills than this। कहा जाता है कि एक दरबारी था, उसने ये कहा कि मुझे अकबर की तलवार से उतना डर नहीं लगता जितना कि मुझे अबुल फजल की कलम से लगता है। तो इसका ये मतलब आप निकाल सकते हैं कि उस ज़माने में अबुल फजल की क्या पोजीशन रही होगी। अकबरनामा इज इन 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स में है। द फर्स्ट वॉल्यूम थ्रोस अ गुड डील ऑफ लाइट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मुगल रॉयल फैमिली। इसमें पहली बुक में जो है रॉयल फैमिली के बारे में बताया गया है, फ्रॉम तैमूर टू हुमायूं। सेकंड वॉल्यूम जो है एंड थर्ड वॉल्यूम गिव द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन ईयर बाय ईयर। दूसरी और तीसरी किताब में जो है वो अकबर की बादशाहत के बारे में बताया गया है। दे आर कंसिडर्ड इंडिस्पेंसिबल फॉर द स्टडी ऑफ अकबर्स रेन, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। उसमें हिस्ट्री के सारे उन एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया है जो अकबर के ज़माने में चला करते थे। इसके बाद में एक किताब और है, आईने अकबरी, इज ऑल्सो इन 3 वॉल्यूम्स, वो भी 3 वॉल्यूम्स में है। This book is regarded as the principal authority on Akbar's institutions. It deals with the Akbar's regulations in all departments and on all subjects. आईने अकबरी जो है वो अकबर के जो प्रिंसिपल्स थे, उसके जो सिद्धांत थे सरकार चलाने के या शासन करने के, उससे रिलेटेड है, और वो उसको बताता है कि किस तरह से उसमें शासन किया गया था और क्या था। वहीं अकबरनामा जो है अकबर की बायोग्राफी के बारे में है, उसकी फैमिली के बारे में है, और उसकी डे टू डे लाइफ के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लेसन 5th, creation of new empire, that is Mughal empire. So we have completed this chapter, and what you have to do, you have to do the exercises in your next chapter. Do exercises, and soon I will provide you the question answer in the PDF format. So students, once again, thank you for watching and listening. Stay home, stay safe.